All right, students, so all can hear me? Yes. So, can anyone recapitulate what we learned in the last class? क्या किया था हमने, किसी को याद है? What we did in the last class? We were doing vectors, right? Okay. In the vectors, what all things we have gone through? Roughly, we have gone through the resultant of two vectors. We have gone through how to get the idea about the direction, right? And we even saw how to derive the magnitude of resultant of two vectors. Okay, yes, we also saw the projection of vectors. अच्छा, फिजिक्स पीरियोडिक टेस्ट, आई टेल यू नाउ क्या है उसका. आई टेल गाइस कि यस. So test portion, guys, Vishnu sir will tell you in the group. We will begin with the questions based on first whatever we did. So we will continue from the vectors. So first a simple question.
Let us say that there are two vectors, A as 2i minus j, B vector as I plus 2j minus k cap. So yes, all will do this and let me know through the poll. Find magnitude of A vector plus 2B vector. We have to find the magnitude of A plus 2B vector. A plus 2B vector पहले ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? A plus 2B vector, that is 2i cap minus j cap plus 2 times of B vector, that is I plus 2j minus k cap, right? So this will come out to be 2i minus j plus 2i plus 4j minus 2k.
सो नाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड. इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे. 2i plus 2i, 4i. भाई लोग एकदम तेज से बोलते चले जाएं. a plus b 2b वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k. मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. Should I go like this or should I give you all guys time to understand? In between, if I stop, some says you are muted, some says ki not audible. I can understand how you all are understanding. Based on that only I am propagating. अभी फिर स्पीड में चलूंगा तो फिर कहोगे स्पीड चल रहा हूं. ये समझ में आया अब a प्लस 2b वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? Let us do another one. Let us say now two vectors having magnitudes 4 units and 3 units respectively are at an angle of 60 degree. Find the magnitude of resultant vector and the direction of resultant. So all should do this one. Whoever will do, they will let me know the answer in the chat. So this question, Shreya Kumari will tell us the answer. बाकी सब भी करेंगे. जल्दी से करेंगे इसको सभी कोई. So yes, Shreya, you can give me your answer. I can see your answer, Varsha. Shreya will give us the answer. बाकी सभी कोई भी करेंगे और जिनका होगा they will tell me whether they have done or not using the poll.
दो वेक्टर हैं जिसके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, डायरेक्ट हम इसका निकाल सकते हैं आंसर। एक का मैग्नीट्यूड 4, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माना ए, दूसरा का 3, एंगल क्या है दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड दिस इज ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 60, दैट इज 1/2। तो आंसर क्या हो गया? रूट 37, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब जिनको ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला याद नहीं है, वो पहले के वीडियो लेक्चर्स देखें। सो tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, ये हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन हम कैसे मेंशन करते हैं? यूजिंग द एंगल। Okay, this is understood how it will be root 37. Hit. Shreya Kumari, your answer was right. Everything was right. Just the thing is, phi you have taken as 180. We have to take it as 60, right? Okay, this is understood then. Right. So Adarsh, you are also getting root 75. Is this understood how we got root 37? Cos 60 डिग्री। अब फिर से जो ट्रिगोनोमेट्री नहीं देखे वो ट्रिगोनोमेट्री जाके देखें, 1/2 होता है। देखो ये क्वेश्चन हो हम नहीं भी करते आज, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार। दैट वाज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन व्हिच वी डिड। लेट अस डू दिस वन ऑल ऑफ यू। जिनका हो जाएगा दे विल मैसेज मी इन द पॉल। बस 9% लोग कंप्लीट किए हैं इसको, सभी को कंप्लीट करना है।
जल्दी जल्दी इसको करेंगे। फर्स्ट पार्ट, फिगर शोज टू पीपल पुलिंग अ ब्लॉक। ये देखो, एक पर्सन इधर पुल कर रहा है, दूसरा पर्सन इधर से पुल कर रहा है। फाइंड द सिंगल फोर्स दैट इज इक्विवेलेंट टू द टू फोर्सेस। So what will be the magnitude of single force that is equivalent to two of these forces? That means the question asked here is find out resultant. So quickly you can find out the resultant. Let us project this one. इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 120 cos 60। इधर क्या हो जाएगा, 120 sin 60। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस प्रोजेक्शन, कि ये हमने प्रोजेक्शन क्या कर दिया यहाँ पर? कोई डाउट है? इट जस्ट मीन्स कि या तो ये एक फोर्स देखें, एल्स वी कैन सी दिस एज दीज टू फोर्सेस आर अप्लाइड। दोनों का बात बराबर है। तो 120 cos 60 क्या होगा, 120 इंटू 1/2, दैट इज 60। 120 sin 60 क्या होगा, 60√3। so this will be how much? No one has given me this 120 sin 60. What will it be? Right, 60√3. 60√3. In the same manner, break this 80 Newton. What will be its component? So what will be the component of 80 Newton? जल्दी से कोई बताएगा? ये 50 डिग्री है, याद रहे तो 53 डिग्री 37 डिग्री का एंगल बताया था। 3 4 5, ये 53 था। तो इस फोर्स का इधर क्या होगा कंपोनेंट, 80 cos 53। cos 53 क्या होगा, 3/5। सो दिस विल बी 48। तो इधर आ गया इसका कंपोनेंट 48। इसका एक और कंपोनेंट आएगा इधर, विच विल बी 80 sin 53। और 80 sin 53 क्या होता है,
Okay, yes. So I can see the components now. 64. 64 I can see one of you have given. ठीक है. तो sin 53 क्या होगा? 4/5, right? 80 into 4/5, 64 हो जाएगा. So here what I have done, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये सारे फोर्सेस को, इट वाज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व दीज फोर्सेस, तो इन दोनों फोर्सेस को क्या किया हमने हमने प्रोजेक्ट कर दिया. So from here it is simple to find the resultant. Why it is simple? इस 60 और इस 48 को कंबाइन करके हम कह सकते हैं it is 60 minus 48, that is 12 newtons in the right direction. ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा? 60 इंटू 1.7 ले लेते हैं √3 का वैल्यू, ये हो जाएगा 100 न्यूटन. सो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स आया 164 न्यूटन्स. So yes, we can find the resultant now. Resultant क्या होगा? रूट ऑफ 164 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. Is this understood to all? Let me know who didn't understand this one. Now if we are able to find out the resultant, ये अगर हमने बना लिया है, then we can find the force that a third person would have to exert on the block to make the resultant force equal to 0. Resultant force किस डायरेक्शन में है? कुछ इस डायरेक्शन में है, राइट? सो हाउ मच फोर्स अनदर पर्सन शुड अप्लाई? उसी डायरेक्शन में अगर सेम फोर्स लगा दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, तब ये रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा. इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? Yes, sir. ये सभी को समझ में आया? Let me know, because after today we are not going to discuss resultant concept. हम ट्रायंगल रूल भी इनफैक्ट कुछ डिस्कस कर लेंगे. We are going to start dot product and the cross product in the next class. तो ये इस क्लास तक सभी को क्लियर होना चाहिए. Everyone tell me in the poll, सभी को समझ में आया? Let me see how many percent have not yet understood. Okay, all right, all have understood. दो को छोड़ के बाकी सब समझ गए. अब ये जो दो नो मार्क किए हैं, दे शुड एटलीस्ट टेल मी. देखो, नहीं बोलोगे कहाँ डाउट है और सिर्फ कहोगे कि डाउट है, तो इसका कोई फायदा होगा क्या? Sir, I have doubt in अगर this फायदा हो जाएगा तो बोलो. √164 square plus 12 square. This one I have doubt. कोई फायदा नहीं होगा, राइट? यस आदर्श,
देखो, एक तो पहला चीज, एक तो हम सब चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं हर सेशन में। दिस इज आवर 5th सेशन गाइस, जिसमें हम प्रोजेक्शन, रिजल्टेंट, ये सब बात कर रहे हैं, राइट। अब 5th सेशन में भी मैं आपसे प्रॉब्लम कौन सा करा रहा हूं? वही प्रॉब्लम सिमिलर टाइप के जो हमने कर चुके हैं। नाउ इफ एनी वन ऑफ यू कम एंड से कि जो हम फर्स्ट सेशन में पढ़े थे ना, उसको ब्रीफ में देखें क्या? सो दिस इज नॉट एनी स्मार्ट वर्ड, राइट, कि ब्रीफ में देखें। टेल मी, नाउ टेल मी इन द पॉल, यस और नो करना। कितने लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मैं फिर से समझाऊं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर फिर से समझाऊं? टेल मी। Okay, that is very great. Almost 50% wants to go through projection of vectors again. Chalo, let us go back again. Okay, so let us go back. जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले थे ना, डॉट एंड क्रॉस, वो फिर से नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो गया। हम फिर से पढ़ते हैं वो चीज जो हम फर्स्ट सेशन में पढ़े थे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स मींस इट इज अबाउट सेपरेटिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज हम चलो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम वो देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, फाइंडिंग रिजल्टेंट। फिर उसके बाद जब टाइम आएगा देन वी विल सी डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो एक और चीज करना सभी कोई, जहां पर भी डाउट आएगा ना, बिल्कुल मत पूछना। 2-3 सेशन हो जाएंगे जब क्वेश्चन कर लेंगे, फिर टेल मी कि प्रोजेक्शन क्या था, चलेगा, वो भी चलेगा। Okay, so let us see what is projection of vectors, separating of vectors. Separating of vectors मतलब यहां पर अगर मैं एक फोर्स इधर लगाया, अब इधर एक फोर्स लगाया, it is equivalent to the two forces that are acting in this horizontal and vertical direction. Now what does this mean?
जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट को दो तरफ से खींचा, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? लेट अस सपोज दो थ्रेड से खींचा इसको, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन, राइट? दिस ऑब्जेक्ट विल go in this direction OA. So if object goes in this direction, that means we can say object's resultant direction is, or the final direction is along OA. This is what we mean by resultant. Resultant में क्या किया हमने? दो वेक्टर को, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 को कंबाइन किया, तो इस कॉम्बिनेशन प्रोसेस से जो एक नया वेक्टर मिला, दैट वाज रिजल्टेंट वेक्टर. इन द सेम मैनर, इसके अगर अपोजिट प्रोसेस में चलें कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसका क्या क्या कंपोनेंट होगा, तो इस केस में तो हमें पता है कंपोनेंट v1 एंड v2 होगा. सो हाउ टू डिटरमाइन दिस v1 एंड v2? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन. सो प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ determination of components of resultant vector. Components of resultant vector. So tell me all, if I give you two vectors a और b, तो इसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं क्या? We can find out resultant, right? सभी कोई कहेंगे ये रिजल्टेंट है. तो उसी तरह रिवर्स प्रोसेस में अगर देखें कि ये रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो ये रिजल्टेंट किस वेक्टर से बना है, वही तो हुआ इसका कंपोनेंट. And finding out those components, that is what we call it as projection. Is this understood now? Projection क्या है? Okay, this time see, I will not tell कि next time मैं repeat नहीं करूंगा, फिर से मैं repeat कर दूंगा. 2-3 लेक्चर के बाद कोई अगर कहेंगे कि इसमें ये फिर से हम ब्रीफली देखते हैं, जैसे कि मैं शॉर्टली बता दिया, प्रोजेक्शन मतलब तोड़ना होता है, प्रोजेक्शन मतलब तोड़ना होता है, ये शॉर्टली जैसे बता दिया था. सो नाउ यू ऑल गाइज आर आस्किंग मी, इसको ब्रीफली बताओ, है ना? तो नेक्स्ट टाइम और ब्रीफली कहोगे, आई विल टेल दैट. ये प्रोजेक्शन का मतलब अभी समझ में आया सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? ओके, लास्ट टाइम भी एवरीवन सेड कि ये प्रोजेक्शन सभी कोई समझ लिए हैं. अच्छा, इस बार तो चलो समझा दिया प्रोजेक्शन, बट बार बार अगर हम रिपीट करेंगे, सो दोज हु आर नॉट फोकस्ड, it will not harm them, but those who are focused, that will be not fair for them. So now I say it for the last time,
प्रोजेक्शन में कोई दिक्कत है? No, sir. नो। देन लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्शन। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। प्रोजेक्शन करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करना होगा, राइट? वी हैव टू यूज ट्रिगोनोमेट्री, साइन एंड कॉस। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, इस पे मैंने फोर्स लगा रखा है, लेट अस से 10 न्यूटन, and this is making an angle 37 degree. We have to find horizontal and vertical component of this force. So quickly, all should find out. So here you have to find the horizontal and vertical component of force. Horizontal and vertical component. जल्दी करेंगे, सभी कोई करेंगे इसको। At least today we will finish up projection. Vertical is 6. You have to just use normal trigonometry. अभी हमें ये पता चल गया है प्रोजेक्शन क्या होता है। देन वी हैव टू सी हाउ टू प्रोजेक्ट इट। ये ट्रायंगल बन गया, ये 37 है। लेट अस से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, है ना? ये 10 न्यूटन है ऑलरेडी। हाउ डू वी कनेक्ट देम? एक्स निकालना है तो हमें कॉस लेना पड़ेगा। कॉस 37 इज इक्वल टू base by hypotenuse, and from here we can solve and get x as 10 cos 37, that is 10 into 4 by 5, cos 37 4 by 5, so this will be 8 newtons. x का क्या वैल्यू आया? 8 newtons. वैसे ही y का हम निकाल सकते हैं। we can use sin 37 and this is y by 10, तो यहाँ से y हमें मिलेगा 10 इंटू साइन 37, राइट? ये 10 को मल्टीप्लाई कर दो इधर ले जाके। साइन 37 क्या होता है? 3/5, so we will put 3/5 here and then we will get 6 न्यूटन्स। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? 8 न्यूटन्स। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 6 न्यूटन्स। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया?
Everyone understood this? Who has any doubt, they will message me for this question. No doubts? ठीक है. Projection of vector, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट? है ना? दिस वन प्रोजेक्शन वी हैव कंप्लीटेड. अब नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, फिर से हम देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. Okay, resultant of two vectors we will see, and then we will see the triangle of vector addition. So after that class we will see dot and the cross product. All right, so yes, all of you has got the modules. नहीं है? ठीक है. So I am adding some questions here. इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में एंटर करने से पहले डिस्कस करेंगे. So I am giving you those questions only based on which we have already completed. है ना? ये रहा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं. प्रोजेक्शन कह दो या रिजोल्यूशन कह दो, बात बराबर है. ओके, ये क्वेश्चन है, और फिर 8 और क्वेश्चंस हैं. सो बिफोर नेक्स्ट क्लास ऑल शुड डू दिस वन. सो स्क्रीनशॉट लेना है, यू ऑल कैन टेक. ये रहा पहला पेज. सभी कोई टेक द स्क्रीनशॉट. डू दिस एंड कीप इट रेडी इन द नेक्स्ट क्लास. एक एक करके मैं पूछूंगा, क्योंकि देन आई विल कम टू नो कि सिर्फ रिपीट करवाना चाहते हो सभी कोई मुझसे क्लास में बार बार, या फिर रियली यू ऑल आर डूइंग समथिंग एट होम. So based on projection and based on the resultant we have done. All right, so everyone have taken this screenshot. Moving ahead, everyone take this screenshot. Okay, so let us meet in the next class, and let us start with again the questions from projection. We are not going to touch. We are going to do questions from the resultant of two vectors, and we will discuss these. और ये जो डिस्कशन होगा that will be based on कि मैं randomly name कॉल करूंगा and you all have to answer me. ठीक है? तो ध्यान से सब, डरना नहीं है, बट सबको करना है. आके कुछ भी कह दो आंसर, बट एवरीवन हैव टू अटेम्प्ट इट. है ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कह दो, मतलब कुछ भी कह देना क्लास में, बट ऑनेस्टली ऑल शुड अटेम्प्ट इट. ठीक है? चलो, लेट अस सी, लेट अस मीट इन ऑल द नेक्स्ट क्लास. बाय एवरीवन.